نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ شہریار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا مصطفیٰ جان رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد ماد الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ رمضان المبارک کا خیر و برکت بھرا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کے 3 عشرے، پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، تیسرا جہنم سے آزادی کے پروانہ ملنے کا۔ اللہ جل مجدہ الکریم کا ہزار شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں رحمت کا عشرہ عطا فرمایا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم غور کریں، فکر کریں، سوچیں کہ اللہ نے جو یہ رحمت کا عشرہ ہمیں عطا فرمایا تھا، ہم نے کتنی رحمتیں اپنے دامن میں جمع کی ہیں۔ اگر کچھ کمی رہ گئی تو آنے والے دنوں میں اس کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے۔ روزے کا مقصد اللہ یہ فرماتا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ نماز، روزہ یہ اہم عبادت ہے، اور زکوٰۃ تو اعظم فروض دین و اہم ارکان اسلام میں سے ہے۔ قرآن پاک میں 32 جگہ پر نماز کے ساتھ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے اس کا ذکر فرمایا۔ پروردگار عالم جل جلالہ و امن والہ نے بندوں سے فرمایا زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ دینے سے مال گھٹتا نہیں بلکہ بڑھتا ہے۔ بعض درختوں میں کچھ اجزائے فاسدہ اس قسم کے پیدا ہو جاتے ہیں کہ اس سے پیڑ کی اٹھان رک جاتی ہے۔ اگر کوئی احمق ہوگا، نادان ہوگا تو انہیں نہیں تراشے گا کہ میرے پیڑ سے اتنا کم ہو جائے گا، لیکن جو عقل مند ہوگا، ہوشیار ہوگا، وہ جانتا ہے کہ آج اگر ان پودوں کو ہم چھانٹ دیں گے تو کل یہ لہلہا کر نونہال درخت لہلہا کر بنے گا، ورنہ یوں ہی مرجھا کر رہ جائے گا۔ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ شریف میں زکوٰۃ کے باب میں بہت تفصیل سے بندوں کو زکوٰۃ دینے کے لیے طرح طرح سے روایتیں بیان فرما کر ترغیب دی ہے کہ لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خشکی اور تری میں جو مال تلف ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے ہی سے تلف ہوتا ہے۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زکوٰۃ کا مال جس مال میں ملا ہوگا اسے تباہ و برباد کر دے گا۔ صحابی رسول حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا، جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ دے دی، اللہ نے اس کے مال کا شر اس سے دور فرما دیا۔ یہی وجہ ہے اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں کر لو زکوٰۃ دے کر، اور اپنے بیماروں کا علاج کرو خیرات کر کے۔ آج کل کورونا وائرس کی بلا بہت پھیلی ہوئی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس بلا سے محفوظ رہیں، آپ کا گھر محفوظ رہے، تو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ صدقات و خیرات کریں، اس لیے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ زکوٰۃ دینے سے مال بڑھے گا۔ اگر کوئی خدا نخواستہ دل میں اس پر یقین نہیں رکھے، جب تو کھلا ہوا کفر ہوگا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے زکوٰۃ دینے سے مال بڑھے گا، اور وہ اس پہ یقین نہیں رکھتا، تو وہ کھلا کفر کرتا ہے۔ ورنہ ذرا سوچئے کہ اس سے بڑھ کر احمق کون ہوگا جو اپنے حقیقی نفع کو چھوڑ کر نقصان مول لے۔ صحابی رسول حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تمہارے اسلام کا پورا ہونا
یہ ہے کہ اپنے مال کے زکوٰۃ ادا کرو۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لاتا ہو اسے لازم ہے کہ اپنے مال کے زکوٰۃ دے، یعنی ایمان کا تقاضا ہے کہ اپنے مال کے زکوٰۃ ادا کی جائے۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس سونا یا چاندی ہو اور اس کی زکوٰۃ نہ دے، قیامت کے دن اس سونے چاندی کی تختیاں بنا کر جہنم کی آگ میں تپائیں گے، پھر ان سے اس شخص کی پیشانی، کروٹ اور پیٹھ پر داغ دیں گے۔ جب وہ ٹھنڈی ہو جائیں گی پھر انہیں تپا کر داغیں گے قیامت کے دن کہ 50,000 برس کا ہوگا۔ اسی طریقے سے اس کو سزا دی جائے گی۔ ذرا سوچیے اور غور کیجیے کہ کس قدر بھیانک یہ سزا ہے۔ اور داغ دینے کو یہ نہ سمجھیے کہ کوئی چہکا لگا دیا جائے گا یا پیشانی و پشت پر چربی نکل کر ختم ہو جائے گی، بلکہ اس کا حال بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے سنیے۔ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ سونا اور چاندی جو پتھر بنا کر داغنے کے لیے جسم پر رکھا جائے گا تو اس کا ایک حصہ پستان پر جہنم کے گرم پتھر رکھیں گے کہ سینہ توڑ کر شانہ سے نکل جائے گا۔ اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں اور شانہ کی ہڈی پر رکھیں گے کہ ہڈیاں توڑ کر سینے سے نکلے گا۔ ذرا سوچئے اور غور کیجئے، اور ذرا یہیں کا ایک سکہ آپ دنیا کی آگ میں تھوڑا سا گرم کر کے اور آپ ذرا اپنے بدن پہ لگا کے دیکھیے کس قدر تکلیف ہوتی ہے۔ پھر کہاں وہ جہنم کی آگ اور اس میں وہ تپایا ہوا سکہ، وہ سونا چاندی اور اس کا پتھر آپ کے جسم پہ رکھا جائے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کوئی روپیہ دوسرے روپے پر نہ رکھا جائے گا، نہ کوئی اشرفی دوسرے اشرفی سے چھو جائے گی، بلکہ زکوٰۃ نہ دینے والے کا جسم میدان قیامت میں اتنا بڑھا دیا جائے گا کہ لاکھوں کروڑوں جوڑے ہوں گے تو ہر روپیہ جدا داغ دے گا۔ اللہ نے اگر دولت دی ہے تو آپ اس کا خیال کریں اور اپنے مال کی جوڑ کر ایک ایک پیسے کی زکوٰۃ نکالیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ نہ دے گا وہ مال قیامت کے دن گنجے اژدہے کے شکل بنے گا اور اس کے گلے میں طوق بن کر پڑے گا۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ اژدہا منہ کھول کر زکوٰۃ نہ دینے والے کے پیچھے دوڑے گا، زکوٰۃ نہ دینے والا بھاگے گا، آخرکار وہ اپنا ہاتھ اس اژدہے کے منہ میں دے دے گا اور وہ ایسے چبائے گا جیسے نر اونٹ چباتا ہے، پھر اس کا سارا بدن چبا ڈالے گا۔ صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ نہ دینے والا ملعون ہے زبان پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں 2 عورتیں سونے کے کنگن پہنے ہوئی حاضر ہوئیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی زکوٰۃ دو گی؟ عرض کی نہ۔ فرمایا کیا چاہتی ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم کے آگ میں تپا کر کنگن پہنائے؟ عرض کی نہیں۔ فرمایا تو اس کی زکوٰۃ نکالو۔ ایک بیوی چاندی کے چھلے پہنے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کی زکوٰۃ دو گی؟ انہوں نے کچھ انکار سا کیا۔ فرمایا تجھے جہنم میں لے جانے کے لیے بس یہی کافی ہے۔ آپ اپنی بیوی سے، اپنی بیٹی سے محبت کرتے ہیں، ان کے لیے زیور بنواتے ہیں، لیکن زیور بنوانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی تاکید کیجیے کہ اگر آپ نے انہیں مالک بنا دیا تو اس کی زکوٰۃ نکالیں، ورنہ یہ آج سونا چاندی کے جو زیور آپ نے بنا کر دے دیے ہیں، کل یہی کے بدلے میں انہیں جہنم کی آگ میں تپا کر جہنم کے طوق اور جہنم کے زیور پہنائے جائیں گے۔ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، صحابی رسول
अफ़ज़लुल ख़ल्क़ बादल अंबिया यार गान नबी का इरशाद गिरामी सुन लो। फरमाते हैं कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक कि फ़र्ज़ अदा न किया जाए। शहनशाह बगदाद गौस समदानी क़ुतब रब्बानी बड़े पीर दस्तगीर सैयदना शेख गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मौलाए कायनात हैदर कर्रार अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं कि सदक़ो खैरात करने वाले और ज़कात न देने वाले का हाल ऐसे ही है जैसे किसी औरत को हमल ठहर जाए, 9 महीने तक वो हमल की तकलीफ़ बर्दाश्त करे और 9 महीने के बाद जब दिन पूरा हो जाए तो वो हमल ज़ाय हो जाए और न लड़का पैदा हो न लड़की पैदा हो तो हमल की तकलीफ़ उसने पूरी बर्दाश्त की। बच्चा जनने की जो तकलीफ़ थी वो भी उसने बर्दाश्त की। अगर पेट में रहता तो उम्मीद लगी रहती कि लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी, मगर अब हमल की तकलीफ़ भी उठाई, बच्चा पैदा करने की अज़ियत भी बर्दाश्त की, हमल भी ज़ाय हो गया, अब कुछ रह भी नहीं गया। तो ऐसे ही उन लोगों का हाल जो बहुत से नेक काम करते हैं, सड़क बनवा देते हैं, बाग लगा देते हैं, कुएँ खुदवा देते हैं, मदरसे बनवा देते हैं, मस्जिदों की तामीर करवा देते हैं, भूखों को खाना खिला देते हैं, नंगों को कपड़ा पहना देते हैं, बीमारों का इलाज करा देते हैं, लेकिन अपने माल की ज़कात नहीं निकालते। तो उनका भी यही हाल है कि उनका पैसा तो खर्च हो जाएगा, उनकी रकम तो सर्फ हो जाएगी, लेकिन ज़कात न देने का वबाल उनके सर पर बाकी रहेगा। इसलिए आपके ऊपर अगर ज़कात बाकी है तो जोड़ जोड़ कर आप एक एक पैसे की पूरी ज़कात निकाल दो और उस ज़कात के निकालने की बरकत से अल्लाह ताला आपके वो कार्य खैर भी कबूल फरमा लेगा और आपको उसका भी अजर मिल जाएगा। इसलिए अगर अल्लाह ने आपको माल दिया है तो अपने माल की आप ज़कात निकालो और ज़कात आप अगर देंगे तो अल्लाह तबारक ताला आपको उसके बदले में बहुत सी रहमतें और बरकतें अता फरमाएगा। याद रखिए ज़कात की फ़र्दियत व फजीलत का ज़िक्र कुरान मजीद में बहुत सी जगहों पर आया हुआ है। ज़कात में नियत शर्त है, अगर नियत नहीं की गई ज़कात देने की तो ज़कात अदा नहीं होगी। ज़कात में एतबार सिर्फ नियत का है। अगर आपने ज़बान से कर्ज़ या हिबा या ईदी कहकर किसी को ज़कात दे दी तो ऐसा नहीं है कि आपने ज़कात नहीं बताया तो आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। आप ज़बान से ये कह दें कि लो भाई मैं तुम्हें ईदी दे रहा हूँ और दिल में नीयत आपकी है ज़कात की, तो ज़कात आपकी अदा हो जाएगी। नीयत सिर्फ देने वाले की ही मोतबर होती है, लेने वाला कुछ भी समझे। लेने वाले ने ये समझा कि मैं गरीब हूँ, मेरे बच्चों के पास कुछ ईद मनाने के लिए नहीं है, मेरे भाई ने ये खुश होकर मुझे ईदी दी है, लेकिन अगर आपने अपने दिल में नीयत कर ली है ज़कात देने की तो आपकी नीयत का एतबार होगा और आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। अगर ईद के दिन आप अपने रिश्तेदारों को जिन्हें ज़कात दी जा सकती है, इसका ख्याल रखिएगा कि 52 तोला चांदी या 7.25 तोला सोना या इसकी मिल्कियत का कोई माल, रहने के लिए मकान, पहनने के लिए कपड़ा, काम करने के लिए औजार जो हाजत असलिया में हैं, उनके अलावा अगर उसके पास नहीं है तो ज़कात लेने का मुस्तहिक है, आप उसे ज़कात दे सकते हैं। और अगर आप ईद के दिन अपने रिश्तेदारों को जिन्हें ज़कात दी जा सकती है कुछ रुपया ईदी के नाम करके देंगे और उन्होंने ईदी ही समझ कर ले लिया तो अगर आपकी नीयत ज़कात देने की है तो ज़कात अदा हो जाएगी। आप किसी मुहताज को, गरीब को खाना खिलाना चाहते हैं, आपने ज़कात की रकम से खाना कई डेग बनवाया और गरीबों मुहताजों को बुलाया, अपने दरवाजे पर बैठाकर उन्हें आपने खाना खिला दिया तो ज़कात नहीं अदा होगी। हाँ, आपने जो खाना बनवाया था वो उन गरीबों को आप दे दीजिए, उन्हें उनका मालिक कर दीजिए तो आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। रुपया कहीं जमा है, किसी के पास अमानत है तो मुतलक़न उस पर भी ज़कात वाजिब है। ज़कात देने में आप सबसे पहले अपने क़राबतदारों में देखें, वात ज़िल क़ुरबा, अगर आपके रिश्तेदारों में, आपके अजीज़ों में, आपके अक़ारिब में कोई ज़कात का मुस्तहिक़ है तो आप ज़कात दे सकते हैं।
ज़कात देने में बस का ख्याल रखें कि बीवी शौहर को ज़कात नहीं दे सकती, शौहर बीवी को ज़कात नहीं दे सकता, आप अपनी असल व फरा को ज़कात नहीं दे सकते, यानी अपने दादा बाप दादा परदादा को ज़कात नहीं दे सकते, बेटे पोते परपोते को नहीं दे सकते। लेकिन अगर आपका सगा भाई ज़कात का मुस्तहिक है तो आप उसे ज़कात दे सकते हैं, आपकी बहन ज़कात की मुस्तहिक है तो आप उसे ज़कात दे सकते हैं। आप दामाद को ज़कात नहीं दे सकते हैं, बेटी को नहीं दे सकते। अगर दामाद आपका ज़कात का मुस्तहिक है तो आप अपने दामाद को ज़कात दे सकते हैं, और बताने की भी ज़रूरत नहीं कि मैं ज़कात की रकम दे रहा हूँ। आप पहले क़राबतदारों में देखें, आपका फूफा अगर ज़कात का मुस्तहिक है आप उसे ज़कात दीजिए, आपका खालू ज़कात का मुस्तहिक है आप उसे ज़कात दीजिए, आपका मामू ज़कात का मुस्तहिक है आप उसे ज़कात दीजिए। आप के अईज़ो अक़रबा में जो लोग ज़कात के मुस्तहिक हों आप पहले उनको देख लें, तो आपको अगर आप अपने अज़ीज़ व अक़ारिब में ज़कात तक़सीम करेंगे तो दोहरा सवाब मिलेगा, एक तो ज़कात की अदायगी का मिलेगा, दूसरे सिला रहमी का मिलेगा। मगर इतना ख़याल रखिए, जैसे ज़कात जोड़ जोड़ कर निकालना आपके ऊपर फ़र्ज़ है, वैसे सही जगह पर पहुंचाना भी ज़रूरी है। कुछ लोग ये समझते हैं कि हमने निकाल दिया, जो भी आया, यतीम है ज़कात दे दिया, बेवा है ज़कात दे दिया, आपके देखने में गरीब नज़र आ रहा आपने ज़कात दे दिया। यतीम अगर मालिक निसाब है, यानी 52 तोला चांदी या 7.25 तोला, इसको भी आप समझ लें कि 52 तोला चांदी के बजाय किसी के पास एक ही तोला चांदी हो और 7.25 तोला सोना के बजाय एक ही तोला सोना हो, तो सोना और चांदी दोनों को मिलाकर 52 तोला चांदी की रकम जो तकरीबन 25-30 हज़ार रुपये की होती है हो जाएगी। वो खुद मालिक निसाब है, उसके ऊपर ज़कात देना फ़र्ज़ है, वो ज़कात नहीं ले सकता है। किसी के पास आधा तोला सोना है और 10 रुपये उसके पास हैं, तो 10 रुपये और आधा तोला सोना को अगर जोड़ दीजिए तो 52 तोला चांदी का निसाब बन जाएगा, वो खुद मालिक निसाब हो जाएगा। वो ज़कात देना उसके ऊपर फ़र्ज़ होगा, आप उसको ज़कात नहीं दे सकते हैं। इसलिए ज़कात देने के लिए आप पहले ये देखें कि ये मालिक निसाब ना हो। अगर मालिक निसाब नहीं है तो आप उससे ज़कात दे सकते हैं। आप अज़ीज़ व अक़ारिब में देखें जो मुस्तहिक़ हों, आप उनको ज़कात दें। इस तरीके से आपको कुछ एहसास भी नहीं होगा। आप अपने सगे भाई को ज़कात की रकम देंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हमने एक जेब से पैसा निकाला दूसरी जेब में रख दिया, और आपको कुछ एहसास भी नहीं होगा। अल्लाह ने अगर आपको माल दिया है तो अपने माल की आप जोड़ जोड़ कर ज़कात निकालें। इस ज़माने में मदारिस इस्लामिया जहाँ दीन की तालीम दी जाती है और बच्चों की किफ़ालत की जाती है, वो भी ज़कात के मुस्तहिक़ हैं। और इस लॉकडाउन के मौके पर तो मदारिस इस्लामिया सख्त कठिन दौर से गुज़र रहे हैं। आप ये सोच सकते हैं कि अगर यही कैफियत बाकी रह गई तो रमज़ान शरीफ ही का वो महीना होता था जिसमें तकरीबन पूरे साल का ख़र्चा मदरसों का इकट्ठा हो जाता था। ज़कात की रकम आती थी, फ़ितरे की रकम आती थी, लोग तरावियाँ पढ़ाने जाते थे, वहाँ से कुछ वसूली करके लाते थे। मुदर्रिसीन रमज़ान शरीफ के महीने में लोगों के पास जाते थे और ज़कात की रकम वसूल करके लाते थे। मगर अब न तो कोई कहीं जा सकता है न कहीं आ सकता है। लॉकडाउन की वजह से आमद और रफ्त पे पाबंदी है और वैसे भी लोग ज़्यादा परेशान ही हैं। तो जाहिर है कि अल्लाह ताला ने जिन्हें इस्तिताअत अता फरमाई है उन्हें चाहिए कि अपने माल की ज़कात जोड़ जोड़ कर निकालें और अपने इज़्ज़ा अक़रबा से अगर कुछ रकम बचती है तो मदारिस इस्लामिया के लिए दें, इसलिए कि मदारिस इस्लामिया इस्लामी क़िले हैं। अगर ये बाकी रहेंगे तो दीन की तालीम यहाँ होती रहेगी, लोगों को अल्लाह और रसूल का पैगाम मालूम होता रहेगा। आप ज़रा सोचिए कि अगर मदरसे ना होंगे तो नमाज का तरीक़ा कहाँ से आप सीखेंगे, रोज़े का मसला आप कहाँ से जानेंगे, ज़कात के मसाइल आप कहाँ से समझेंगे। अगर मदरसा ना होगा तो कुरान आप कहाँ सीखेंगे, दीन की बातें आप कहाँ से मालूम करेंगे। इसलिए मदारिस इस्लामिया जो सिर्फ़ और सिर्फ आपके ज़कात फ़ितरे की रकम से आजकल चल रहे हैं, इस रमज़ान शरीफ के मौके पर, इस लॉकडाउन के मौके पर आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने ज़कात फ़ितरे की रकम मदारिस इस्लामिया के लिए दें। मगर ये भी ख्याल रखें कि आप सिर्फ उन्हीं मदारिस को दें जो सुन्नी सहीहुल अक़ीदा मदरसे हों। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ सथनी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो एक बहुत अजीम बुज़ुर्ग हैं, शहर हक रुदौली शरीफ में जिनका इंतकाल हुआ, आज भी मरहूम मलिक सलाहुद्दीन के मकान पर उनके तबरुकात रखे हैं और वो कमरा भी उसी तरीक़े से महफूज है जहाँ शाह साहब का विसाल हुआ था। 100 साल के करीब बीत गए, मगर हर दोशंबा और जुमा के दिन शाह साहब के
ज़माने ही से वहाँ मिलाद शरीफ अब तक हो रही है। हर साल उनका उर्स पाक मनाया जाता है। यही हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ सत्तनी रहमतुल्लाह अलैह मुंबई में तशरीफ़ फरमा थे। एक मौलवी पहुँच गया, उसने उनसे कुछ चंदे के लिए सवाल किया। शाह साहब ने कुछ रकम उसको दी। वो रकम लेकर जैसे ही बाहर निकला, किसी ने कहा, हुज़ूर आप जानते हैं जिसको आपने ये पैसा दिया है ये देवबंदी है। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ सत्तनी को जलाल आ गया और उन्होंने फरमाया, लोगों दौड़ो, जल्दी दौड़ो और इसको पकड़ो, मेरा दिया हुआ पैसा इससे छीन लो। किसी ने कहा, हुज़ूर अब आपने दे दिया, जाने दीजिए, आइंदा एहतियात कीजिएगा। तो आँख में आंसू आ गए। फरमाया कि कल मैदान महशर में अल्लाह के प्यारे रसूल ने अगर कहीं मुझसे पूछ लिया कि अब्दुल लतीफ़ तुझे क्या अल्लाह ने माल इसीलिए दिया था कि तू ऐसे लोगों के हवाले कर दे कि जो ऐसे मदरसों में ले जाकर माल खर्च करें जहाँ नबी के दुश्मन पैदा किए जाए, जहाँ तक़वीतुल ईमान जैसी रुसवाए ज़माना किताब पढ़ाई जाए जिसमें नबी को माज़अल्लाह चमार से ज़्यादा दलील लिखा गया, ज़र्रे नाचीर से कमतर लिखा गया, मरकर मिट्टी में मिलने वाला लिखा गया। इसलिए लोगों मेरा पैसा उससे छीन लो, और जब तक पैसा वापस नहीं ले लिया शाह साहब को सुकून नहीं मिला। इसलिए मेरे अजीज़ों, आप ज़कात देते हुए इसका ख्याल रखें, किसी गुस्ताख़ रसूल बदमज़हब बेदीन को आप ज़कात न दें, बदमज़हब बेदीन मदरसों को ज़कात न दें। सुन्नी सही अक़ीदा जो गरीब मोहताज हों, मुफलिस हों और जो मालिक निसाब ना हों, उन्हें आप ज़कात की रकम दें, और सिर्फ उन्हीं मदरसों को आप ज़कात की रकम दें जो मदरसे सही मानों में ज़कात के मुस्तहिक़ हैं, जहाँ ज़कात का सही तरीक़े से खर्च होता है और ज़कात की रकम सही ढंग से सर्फ की जाती है। अल्लाह तबारक ताला अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में इस माह मुबारक की बरकतों से हमें माला माल फरमाए। शहर हक़ रुदौली शरीफ का एक अजीम इदारा दारुल उलूम मखदूमिया है और कुल्लियतुल बनात गुलशन फ़ातिमा है, जहाँ तकरीबन 500 तलबा और तालिबात की किफ़ालत होती है, उन्हें खाना दिया जाता है और लगभग 40 लोगों के ज़रिए शब रोज़ उन्हें क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल का दर्स दिया जाता है। लाखों रुपए का सालाना खर्च है, कोई मुस्तकिल आमदनी नहीं है। इसलिए ये गैर एडेड मदरसा है, सिर्फ ज़कात फ़ितरे और अतियात के बलबूते पर यह दीनी अदारा चल रहा है। मैं गुजारिश करूँगा जो लोग अपने माल की ज़कात निकालें उसका कुछ हिस्सा दारुल उलूम मखदूमिया रुदौली शरीफ के भी हवाले फरमाएँ। अल्लाह तबारक ताला अपने प्यारे हबीब के सदक़े में हमें नेकियों की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दारुल उलूम मखदूमिया के लिए अगर आप ज़कात की रकम भेजना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कायम करें। मदरसे का अकाउंट नंबर हम आपको भेज देंगे और हमसे रब्ते के लिए आप हमारा फ़ोन नंबर नोट कर लें, 86 044 786 92, 86 044 786 92। अब्दुल मुस्तफ़ा सिद्दीकी मैं आपसे मुखातब हूँ। अल्लाह ताला इस माह रमज़ान मुबारक की बरकतों से हमें माला माल फरमाए। और आप कोशिश कीजिए, आप अपने आस पड़ोस में देखिए, अज़ा अक़रबा में देखिए, आप अपने शहर में देखिए, जहाँ कोई गरीब मोहताज हाजतमंद आपको नज़र आए उसकी दिल खोल कर मदद कीजिए। अल्लाह ताला इस माह रमज़ान की बरकतों से हमें माला माल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। अकबर नेटवर्क में आप सबका खैर मकदम है। आपने अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि इस्लाम से जुड़ी हमारी वीडियोस सही वक्त पर आप तक पहुंच सके। अगला वीडियोस आने तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।